So students, let us discuss how to find the diameter of the given body using a vernier caliper. Now you can do this experiment in Amrita O Lab, and this is a virtual lab. So with the help of simulation you can do this experiment without having an apparatus with you. Okay, so during this lockdown period this will be helpful to you, this lab. Now this one is vernier caliper, and these are the bodies you can select: spherical, cuboidal, there is a beaker, and cylindrical. So for cuboidal you can find length, then breadth, and then height, and then you can find the volume. For beaker also you can find the volume. For that you have to find out the internal diameter. For cylindrical body you can find the external diameter, and spherical body also you can find out the external diameter. Now, so to start with the experiment, you must find least count. So with one video I have sent you, so from that you can find out. And then what is zero error? So here you find that there are 10 divisions, means this is movable and this is known as vernier scale, and there are 15 centimeter length scale, so we call it, see, 15 centimeter length, so we call it main scale. So see, the first division of vernier scale, small scale जो है, so that is coinciding with the zero of the main scale. So we can say that the vernier caliper has zero error, 0. Now let us insert the body. So I have taken the spherical body, and let us, you just slightly, when you will move this towards, so we have brought the jaws between, brought the spherical body between the jaws, and this is the observation table. So serial number, second column main scale, third column vernier scale, fourth column vernier scale reading into least count, and next column, that is diameter, so that will be equal to vernier scale reading into least count plus main scale. Now to find the main scale, you will use main scale reading, you will use the fixed scale, that okay, and to find the vernier scale reading you will use the small scale, which is having only 10 divisions. Now main scale reading will be in centimeter, but vernier scale reading will be in numbers, numerical value. So कितने डिविजन्स हैं? 10. इसका मतलब 1 से 0 से 10 के बीच में आपके ये रहेंगे vernier scale reading. It will not be in unit, centimeter. So now see, we'll see the magnified part. Now here आप देखेंगे सो इस केस में आप देखिए कि हाँ, यहाँ देखो आप कितना है, हाउ मच इट इज़, यहाँ पे दिखा रहे हैं 2, मेन स्केल में देखोगे 2, और 2 के बाद एक डिवीज़न जो है वो कितने का है, 0.1 सेंटीमीटर. सो 2 के बाद वाला जो डिवीज़न है वो 2.1 सेंटीमीटर हो गया. सो अभी देखो जो 10 डिवीज़न वर्नियर स्केल का है उसका 0 जो है वो मैग्नीफाइड करके जब देख पा रहे हो तो उसमें तुम देख रहे हो कि 2.1 और 2.2 के बीच में है. तो मेन स्केल रीडिंग कितना रहेगा,
जब तक कि 2.2 कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक आपको रीडिंग मेन स्केल रीडिंग जो है 2.1 सेंटीमीटर ही रहेगा. सो मेन स्केल रीडिंग विल बी 2.1 सेंटीमीटर. अब आप ये देखिए कि कौन सा डिवीज़न वर्नियर स्केल का, ये जो 10 डिवीज़न वर्नियर स्केल के रहेंगे फिक्स्ड जो मूवेबल है, तो उसका कौन सा डिवीज़न एकदम एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है. तो यहाँ पर आप देखोगे कि 0 1 2 3 4 5 6 वो जो है मेन स्केल वाला जो रीडिंग है डिवीज़न है उससे एग्जैक्टली कॉन्साइड नहीं कर रहा. ओके, लेकिन 7th वाला देखो कंपैरेटिवली बाकी सब डिवीज़न से वो एकदम लाइन में है, एक लाइन बन रहा है. तो नीचे देखो एक डीप कलर का जो कलर वाला में डिवीज़न है और दूसरा 2 और 3 के बीच में. सो ये आपका वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, तो 7. ओके, 7 वर्नियर स्केल रीडिंग इज 7 और मेन स्केल रीडिंग इज 2.1 सेंटीमीटर. सो 7 इंटू लीस्ट काउंट कितना आया 0.01 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर. अब आप देखोगे 2.1 मेन स्केल रीडिंग प्लस 0.07. So how much you got? 2.1 plus 0.07 means 2.17 centimeter will be the diameter. Will be the diameter of the given body, spherical body. So मोबाइल में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन by hit and trial method you can complete it. Okay, now instead of this, if you want to find out the internal diameter of the beaker or any hollow cylindrical body also, so जो लोअर वाला जॉ नहीं, ऊपर में एक जॉ है, उससे इंटरनल डायमीटर निकलता है. अब आप देखोगे हाउ इज़ इट. तो रीसेट कर लीजिए पहले, है ना. रीसेट होने के बाद फिर वापस जॉज के बीच में गैप ख़त्म हो जाएगा. और अगर बीकर सेलेक्ट करना चाहते हो तो देखिए बीकर सेलेक्ट हो गया. अब इस तरह से आप प्रोसेस सेम रहेगा, मतलब नीचे वाला ये नहीं कि हम ऊपर में इंच में रहेगा, उसको नहीं लेना है. नीचे जो है आपका सेंटीमीटर वाला मेन स्केल रीडिंग के लिए वही यूज़ करेंगे. अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न 0 डिवीज़न जो है कितने के बीच में है, 2.5 2.6 2.7. ठीक है, और उसी तरह से 2.7 हो जाएगा इसका मेन स्केल रीडिंग. और वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए फिर आप देखो कि वर्नियर स्केल में कौन सा डिवीज़न एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप फाइंड आउट करोगे. नाउ इफ़ यू वांट टू find out the volume of the cuboidal body, then what will you do? You will take this iron block and see here length. So if to find length again you have to bring this jaws. Bring this jaws, पहले इसको थोड़ा स्मॉल कर लो और उसके बाद ले करके आना है ना, तो आराम से आ जाएगा. सो ये आ गया आपका, ये लेंथ का मेजरमेंट हो गया. आप ये जो मैग्नीफाइड पार्ट है वहाँ से लेंथ निकाल लोगे. फिर आप यहाँ देखो, यहाँ पे ब्रेड्थ पे अगर क्लिक करोगे तो ये अपने आप ही जो है ब्रेड्थ के उसमें आ जाएगा. और फिर ये जॉज को लेकर के आइए, ठीक है ना, ये जॉज को लेके आइए. तो अभी जो है मेजरमेंट ब्रेड्थ का हो जाएगा. और देन थिकनेस के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर अभी देखो इसका इस तरीके से अरेंज हो जा रहा है.
सो यहाँ से आपको मिल जाएगा थिकनेस। थोड़ा और छोटा करोगे तभी ये दिख आएगा, है ना। सो ये आपका थिकनेस हो गया। सो यहाँ से आपका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट लोगे तो आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। और कम से कम हर लेंथ का 3 रीडिंग, ब्रेड्थ के लिए 3 रीडिंग और थिकनेस के लिए 3 रीडिंग कम से कम आप लीजिएगा। क्लियर? नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बीकर, तब आप देखो जब बीकर को आप टच करोगे, बीकर को आपने टच किया तो यहाँ इनर डायमीटर के लिए देखो ऊपर आया था, और डेप्थ के लिए जब आपका इसका हाइट फाइंड आउट करोगे तो डेप्थ के लिए डेप्थ में यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप देखो फर्स्ट यू हैव टू दिस मेक इट रीसेट करना होगा, है ना। और अभी आप देखो ये हो गया केस। देन अगेन यू हैव टू रीसेट एंड देन फॉर डेप्थ you will put it here and that will come in the between the jaws. Similarly अगर आप चाहते हैं रीसेट फिर से करेंगे और ये सिलिंड्रिकल बॉडी को अगर आप इंसर्ट करोगे तो इट विल बी लाइक दिस. So in this way you can do the experiment in your laboratory. One thing you do, you just यहाँ पे जो है ना इसको क्लिक कर लो. So make it, bring it here. And hence you can find the diameter. So in this way you can find it at your home also. You can do this experiment at your home also. So you will do this experiment at your home and you will send the reading and I will tell you how to write the experiment. Thank you.